Hello, Sassy Nari. Thank you for joining me today. When I was working with my life coach back in 2022, he told me that I have a fixed mindset. And I thought कि अब ये क्या है? Then he explained everything and I've been working on it ever since. और आजकल हम adults को fix से growth mindset में लाने की बात बहुत लोग कर रहे हैं. But very few people are talking about कि किड्स को कैसे इस माइंडसेट में लाया जाए. सी किड्स आर बॉर्न विद ग्रोथ माइंडसेट, बट हमारी अपब्रिंगिंग उनका माइंडसेट फिक्स साइड में ले जाती है. तो फिर चलो आज ये समझते हैं कि ग्रोथ माइंडसेट क्या है, ये हम सबके लिए क्यों जरूरी है और कैसे हम अपने बच्चों को और अपने आप को भी ग्रोथ माइंडेड बना सकते हैं. मैं बात कर रही हूँ साइको सोशियो स्पिरिचुअल काउंसलर पूजा उस्वाल से. हर वर्क इंक्लूड्स पेरेंटिंग एंड लाइफ कोचिंग, ब्रेथ वर्क, PLR थेरेपी एंड माइंडसेट ट्रेनिंग. She helps people unlock their full potential, combining Western and Eastern psychology principles, focusing on breath awareness, harmonious relations, non-violent communication, and embracing a growth mindset. So get ready to be transformed. But before that, please rate and review this podcast. Each episode takes many hours of work, from researching to recording to editing and finally making it go live. It costs money too, but it's available to you free of cost. So please support by rating and sharing if you like our work. Hey Sassy Nari, welcome to Little Fixes. This is Maitri, a social media professional, a wife and a mother. Marriage is one of the biggest steps we take. And on this podcast, we discuss finding ourselves after happily ever after. थोड़े ideas, थोड़े rants और बहुत सारा food for thought. Join me and my guests because we get you. And now to our guest. Hi Pooja, welcome to Little Fixes. Hi, Maitri. Thank you for having me here. My pleasure, Pooja. And the first thing which I want to ask you is what is mindset? Because we are going to talk about growth mindset, fixed mindset, कैसे develop करना है. And I think मोटा मोटा we understand कि mindset होता क्या है, but we would like a little bit of deep dive. Okay. So like you said, हमें पता है mindset क्या होता है. Uh, हम सोचते हैं कि नेगेटिव माइंडसेट है या पॉजिटिव माइंडसेट है, अडेप्टेबल माइंडसेट है या नॉन अडेप्टेबल माइंडसेट है. बट अगर आप एक्चुअली माइंडसेट की डेफिनेशन देखी जाए, माइंडसेट इज योर बिलीफ based on the cultures, values, philosophies that you have been introduced to throughout your lifetime. It is also a way of how you make sense of life and what meaning you give to your life. That essentially is mindset. So what I'm trying to say is, say आप और मैं एक event महसूस करते हैं. We go through an event and then how you are going to internalize it and how I am going to internalize it is going to be very different. And based on how we delete, distort, and generalize, and then organize that information in our mind is essentially mindset. So mindset is a way of setting a frame of mind and organizing the information that you receive from your surrounding. That is mindset. ओके, तो माइंडसेट तो हमें समझ में आ गया. एंड नाउ टेल अस ये ग्रोथ माइंडसेट, फिक्स माइंडसेट क्या होता है. माय हस्बैंड कीप्स गोइंग ऑन एंड ऑन अबाउट इट, एंड इवन माय लाइफ कोच recommended थिंग्स लाइक ग्रोथ माइंडसेट में जाना है. एंड देयर इज अ वेरी nice book also called Mindset. I don't remember the author's name. So, Yes. I mean, it's everywhere. Even this morning, I was listening to a podcast about it. So, I want to understand what are these two types of mindset and what are the differences. So let's look at what growth mindset is essentially. Growth mindset is one belief in his or her own ability, talent, and intelligence by the way of effort. What I mean to say is a belief that you can be more intelligent, you can develop talents and skills and abilities if you work hard enough and have perseverance. That is growth mindset. Now we look at fixed mindset. Fixed mindset is essentially opposite of growth mindset. Fixed mindset is, I would say, blame it to our education system or how we have been brought up, where there is a belief that intelligence is static, it cannot increase. The concept of IQ, there's a very interesting story behind the concept of IQ if you look into it. It was developed by a scientist not as a way to measure
children's intelligence, but as a way to find gaps in education where how the teaching can be different so that the children can learn better. But what happened of IQ? It became a marker of who is smart, who is intelligent, who is not smart, who is not intelligent. And now here, we are not talking about skill development. They are not talking about the ability, the resilience that the child can bring in. They are not talking about the power of effort. So fixed mindset is about having a belief that your intelligence is fixed at the time of birth. Now, some in our day-to-day life, some comments like when you did good the first time, what appreciation you receive? Wow, you're very smart. Now what happens? You are smart, not what you did was smart. So your smartness becomes your identity. Mm-hmm. So that is fixed mindset. Now, if you want to move ahead and see the actual differences between the two, if you look at growth mindset people, they don't look, they look at challenges with a sense of curiosity. They are almost uh, adventurous about challenge. Wow, let's try this, let's do it again. They don't get afraid when things get difficult. Second is they look at criticism as feedback. So when they do something, they and it doesn't work out well, rather than being disheartened, they will say, "Acha, this didn't work out. Let's analyze it. Let's take inventory of what went wrong. Can I change the strategy? And can I move on?" Third is they get inspired by people who are doing better than them rather than threatened. Okay, so now when you look at fixed mindset, in fixed mindset, people look at challenges as threat. They would not take up anything which they are not already good at. They would like to do things which they are good at and repeat that again and again. They will look at people doing better than them as threat, competition, and compare rather than learning from them. And they almost always ignore criticism because they feel that that is a personal attack rather than a feedback. Mm-hmm. Okay. So now I was thinking of something, I don't know, contradictory when I was listening to you. जैसे आपने बोला कि ग्रोथ माइंडसेट होता है कि आप चेंज हो सकते हो, फिक्स माइंडसेट में आप नहीं हो सकते हो, ऐसा आप सोचते हो। ठीक है। नाउ आई ऑल्सो वांट टू नो कि क्या सम पीपल आर बॉर्न विद ग्रोथ माइंडसेट, सम पीपल आर बॉर्न विद फिक्स माइंडसेट, और इट इज मोर ऑफ अ नर्चर थिंग कि बॉर्न तो सब एक ही जैसे होते हैं और फिर उसके बाद हमारा माइंडसेट डेवलप होता है, मे बी देयर सम न्यूरो साइंस बिहाइंड Oh, this is a very amazing question. We are all born with growth mindset. इट। ओके। Nobody is born with fixed mindset. I'll give you an example. When you look at a small child, और जब वो चलने की कोशिश कर रहा है, वो 100 बार गिरता है, 100 बार उठता है। वो ऐसे नहीं सोचता कि यार मैंने 4 बार ट्राई कर लिया, मैं जिंदगी भर कभी नहीं चल पाऊंगा, आई एम अ यूजलेस फेलो. The child doesn't think like that. When the child is learning to pick something or write for the first time, fixed mindset is what we instill as a society in children. Children essentially are born with growth mindset. So if you want to look at the neuroscience behind it, so there is a very interesting concept called neuroplasticity. Now you cannot talk about growth mindset without the undercurrent of neuroplasticity. But पहले ये समझते हैं कि neuroplasticity है क्या? So you know that जैसे हमारे body में there are 3 trillion cells, we have billions of neurons in our brain. और ये neurons ये 3 ट्रिलियन सेल्स को कॉन्स्टेंटली सिग्नल भेजते हैं, और इसी वजह से अ बॉडी फंक्शंस, द माइंड बॉडी कनेक्शन जो बोलते हैं, देयर इज अ कांस्टेंट सिग्नलिंग गोइंग बिटवीन द ब्रेन एंड द बॉडी. नाउ दीज न्यूरॉन्स हैव द एबिलिटी टू चेंज, टू अडेप्ट. ये न्यूरॉन्स क्या करते हैं? ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, दे कम्युनिकेट विथ ईच अदर, और इस कम्युनिकेशन के थ्रू दे बिल्ड कनेक्शंस. इसको हम न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं. अगर इसको इजी वे में समझना है तो समझो, take an example of a city with all its lanes and connections and footpaths which are connecting information like one building to another building. अब ये buildings information हो गए, ठीक है? और imagine if this building was able to change and adapt to the changes अपने आप. रोड अपने आप वाइड हो रहे अगर ट्रैफिक बढ़ रहा है, रोड अपने आप छोटे हो रहे अगर वहाँ ट्रैफिक नहीं है,
So if the city is able to manage, that is what neural network does in your mind to the information that you're receiving. Now whatever you're practicing again and again will get strengthened. उसका traffic बढ़ेगा तो वो roads बड़े होंगे, वो neural synapses बड़े होंगे. And something that you're not practicing or something that you're not doing again and again, उसके roads छोटे हो जाएंगे, मतलब वो connections निकल जाएंगे. इसी को हम बोलते हैं भूलना. हमने कुछ सीखा है, we were very good at something because we were practicing it again and again. The day you stop using that technique or skill or practicing, वो connections छोटे होते जाते हैं और वो टूट जाते हैं. So this is what is called neuroplasticity. अभी neuroplasticity का एक सबसे amazing point क्या है कि you can neuroplasticity will be with you till the end of your day. Your brain can change, adapt even when you're 100 years old. Yes, it is faster before 12 years old or even when you're as a small baby, but your brain's ability to adapt and change never goes. So growth mindset ये हमेशा आपके पास है, बस ये एक attitude है जो आपको adopt करना है. It's not somewhere within you. It is something which you adapt as you move on. ओके. सो न्यूरोप्लास्टिसिटी हमें समझ में आ गई. अब पूजा हमें ये बताइए कि बोला जाता है ना कि ईदर यू हैव व्हाट इट टेक्स और यू डोंट हैव व्हाट इट टेक्स. तो एक तो ये हो गया. दूसरी चीज ये हो गई कि एक ब्रिलियंस होती है जो हम बचपन से बोल देते हैं, ये तो जीनियस है, ये बच्चा प्रोडिजी है. और हमारे स्कूल में जैसे यू मेंशन आल्सो आवर एजुकेशन सिस्टम, तो उसमें भी बोल दिया जाता था कि हमारी टीचर्स थी, दे यूज्ड टू कॉल सच स्टूडेंट्स चिकना घड़ा. इनके ऊपर कुछ भी डालो, इट जस्ट नॉट इवन बाउंसेस, इट जस्ट स्लाइड्स हर तरफ पानी की तरह. तो ऐसी चीजें बोली जाती थी विच आई थिंक इज वेरी डैमेजिंग एट सम लेवल. पर क्या ये जो माइंडसेट है बच्चों का, ये उनके, आपने बोला भी कि नर्चर से आता है, तो कैसे आता है, क्या होता है, हम पेरेंट्स या हम टीचर्स ऐसा क्या गलत कर रहे हैं जिसकी वजह से ये माइंडसेट हो रहा है? हमारा भी ऐसा ही माइंडसेट रहा है, तो हमारे पेरेंट्स ने या उनके पेरेंट्स ने भी कुछ किया होगा. तो ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्या किया गया कि ये ऐसे? एक एग्जांपल मैंने दिया भी आपको, बट आई थिंक देयर इज मोर टू इट, तो वी वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू. अभी मेरे पास इसके सारे एविडेंसेस तो आज हम नहीं कवर कर पाएंगे, बट वी विल ट्राई टू फिट इट इन. तो आपका पहला स्टेटमेंट था कि वो चिकना घड़ा वाला, कि either you have it or you don't have it. I don't believe in it. Yeah. We all have it in us. We all have it in us. The only thing is, जिस चीज को आप अपना इंटेंशन, अटेंशन और फोकस देते हो वो आप कर पाते हो, और जिस चीज को आप आपका इंटेंशन, अटेंशन और फोकस नहीं दे रहे हो वो आप नहीं कर पा रहे हो. Now there is a very thin line here where you spoke about prodigies and geniuses. Yes, there are such talents in world जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि क्यों एक 7 साल का बच्चा इतना फास्ट मैथमेटिक्स कर लेता है, या क्यों एक 8-year-old एक म्यूजिक प्रोडिजी है. बट दोज पीपल आर वेरी फ्यू, नॉट इवन 1%. तो वो ग्रुप को हम साइड में रख देते हैं. बट एट लार्ज आपकी और मेरी बात करें तो एटलीस्ट आई एम नॉट अ प्रोडिजी, सो आपकी और मेरी बात करें तो जब हम पैदा तो हुए, वी एस्टैब्लिश कि हम लोग ग्रोथ माइंडसेट से ही पैदा हुए थे. वी हैव इनफ एविडेंसेस. एंड नहीं तो बच्चों को देख लो यार, यू विल नो कि वी ऑल हैव ग्रोथ माइंडसेट. ये क्यों रुकता गया इज बिकॉज ऑफ द कंडीशनिंग. अभी कंडीशनिंग कितने लेवल पे हुई देखो. जैसे कि आपने पहली बार ड्राइंग किया और आपके मम्मी के पास भागते भागते गए, मम्मा 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 मैंने अच्छा सा ड्राइंग किया. अब यहाँ 2-3 चीजें हो सकती है. अगर मम्मी को लगे बच्चा है, बच्चे को अप्रिशिएट करो, तो मम्मी ने बोला होगा, अरे वाह वेरी नाइस, दिस इज सच अ नाइस ड्राइंग, वेरी गुड, यू आर सो स्मार्ट, यू आर सो आर्टिस्टिक. वो बच्चे को एक आइडेंटिटी दे दी. दूसरा ये होगा कि अगर सपोज मम्मी खुद आर्टिस्ट है तो वो बच्चे को करेक्ट करेगी, अरे कलर स्क्वायर से बाहर नहीं जाना चाहिए था, अरे ऐसा करते तो अच्छा होता. और तीसरे है जो थोड़े स्ट्रिक्ट टाइप के पेरेंट्स हैं, जिनको लगता है बच्चों को डांट फटकार के ही वो आगे बढ़ेंगे, तो दे माइट इवन क्रिटिसाइज द वर्क. ये तीनों चीजों में वो बच्चे के एफर्ट के बारे में बात नहीं हुई, वो बच्चे के परसिवियरेंस के बारे में बात नहीं हुई. वो बच्चा पहली बार ड्रॉ कर रहा है, दैट चाइल्ड इज यूज सम इंटेलिजेंस टू ब्रिंग अबाउट द कलर कॉम्बिनेशन,
द चाइल्ड हैज ऑब्जर्व समथिंग एंड ट्राई टू ड्रॉ, ये सारी चीजों पे तो उसको फीडबैक ही नहीं मिला। उसको फीडबैक मिला कि वो स्मार्ट है कि नहीं, उसका काम अच्छा है कि नहीं, और वो अच्छा कर पाता है कि नहीं। हम्म और यहाँ से शुरुआत होती है फिक्स्ड माइंडसेट की, दैट ओ माय वर्क इज नॉट गुड, ओ आई एम स्मार्ट, ओ आई एम आर्टिस्टिक, मतलब ये ऑलरेडी मेरे अंदर है। हम्म ये क्या करता है, परफॉर्मेंस को रिड्यूस कर देता है, और ऐसे हम्म फिक्स्ड माइंडसेट की शुरुआत होती है। सो से अगेन इफ वी टेक द सेम एग्जांपल ऑफ द ड्राइंग, द मदर कुड से, ओ आई लाइक द चॉइस ऑफ योर कलर, हाउ डिड यू थिंक अबाउट दैट कलर, oh हम्म it looks nice, but tell me, if you could add something to it, what else could you add? Would you like to make another drawing? Just observe what effort has gone into that. Oh, I saw you were drawing for an hour. You really you really were focused when you were doing that work, and I saw you were enjoying that work. ये सब चीजों से बच्चों को जो प्रोसेस ऑफ काम करना है, दे स्टार्ट feeling happiness in the process of engaging in an activity rather than the outcome. Now, here what you're doing, acknowledging the process, you're also bringing about observation of the effort that the child is put in. इससे एक child में belief instill होता है कि it's not about the end product, or it's not about doing the best, but it is about with how much focus and effort I'm doing it. ओके, ठीक है, हमने फीडबैक नहीं दिया, पर कहीं इसमें बच्चे को फिर पता कैसे चलेगा कि इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? सॉफ्ट नहीं अप्रोच है थोड़ा सा कि अच्छा, एफर्ट को अप्रिशिएट कर दिया हमने हर बार कि हाँ तूने बहुत अच्छा एफर्ट डाला, बट स्टैंडर्ड्स लोअर नहीं कर देगा कि मैं तो जो भी करता हूँ मेरा एफर्ट को प्रेज कर दिया जाता है। Yes, there is a slight chance of this happening, but this will happen when you praise the drawing saying it is very good, or you are हम्म artistic. When you praise the person instead of the work and the process, then the person will become docile and say अभी और कुछ करने की जरूरत नहीं है. Or to हम्म answer your question, motivation is necessary but not at that point. हम्म जब भी कोई बच्चा कुछ अचीव करके आ रहा है, फीडबैक देना जरूरी है, बट तभी देना जरूरी नहीं है। फीडबैक बाद में भी दिया जा सकता है, सेलिब्रेशन के बाद। हाँ Genuine effort is very important. So this growth mindset is nowhere permissive. In fact, growth हम्म mindset is accurate. You are uh, praising genuine efforts. You're not just praising something so that the child will, not to massage the child's ego. हम्म So there are enough evidences कि the child will not take a back seat and say ये हो गया. In fact, the child will feel motivated now, because see, motivation is by default in children. We curtail it by giving them too many suggestions and advices very early in life, before they have explored enough in life. हम्म ओके, तो मान लो उसने हमें अपनी ड्राइंग दिखाई, उस वक्त तो हमने एफर्ट को प्रेज कर दिया, बट वी वांट टू गिव सम फीडबैक ऑल्सो कि हाँ ये चीज़ इम्प्रूव हो सकती है, ये हो सकता है, तो वो फिर कब और कैसे देना चाहिए? पहला क्वेश्चन आप चाइल्ड से ही पूछ लो, ओके इफ यू कुड डू दिस ड्राइंग अगेन, हाउ वुड यू डू इट डिफरेंटली? हम्म बच्चा ही खुद बता देगा। सी, यू एंड मी नो व्हेन वी आल्सो वर्क, हम कहाँ लैक कर रहे हैं दूसरों से ज्यादा हमको पहले पता चलता है कि वी आर लैकिंग हियर, इजंट या इट? हम्म एंड ऑल्सो बहुत बार अडल्ट्स बच्चों को एडवाइजेस उनके पर्सपेक्टिव से दे रहे हैं। आप आपके 30 या साल के एक्सपीरियंस से एडवाइस 3 साल के बच्चे को दे रहे हो। आपका 30 years का लाइफ है, उसका 3 साल का लाइफ है, आपके लाइफ का 10% है। तो हम्म आपका जो परसेप्शन ऑफ परफेक्शन है, वो तो वैसे ही उसको लागू नहीं हो रहा है। या सो दैट इज द डिफरेंस। यस, अगर आप बोल रहे हो कि फीडबैक कैसे और कब दे, फीडबैक बाद में दो, मेक इट अ पार्ट ऑफ डिस्कशन। हम्म Ask your child, how would you do it differently? Okay, if there were another colors that you would use, what would you use? Acha, mama is thinking कि pink and blue will go better than red. What do you feel? Open ended question पूछो ना, बच्चे से इंफॉर्मेशन आने दो। बच्चा ओके आपसे ज्यादा बता देगा आपको। ओके ओके इसमें इसमें एक और बात होती है। ये तो मैंने एक पहलू बता दिया ग्रोथ माइंडसेट का। ग्रोथ माइंडसेट का दूसरा पहलू है व्हेन योर चाइल्ड इज नॉट डूइंग वेल एट समथिंग एंड इज गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, हम्म तब आता है पावर ऑफ येट। हम्म When the child comes home and says, "Mama, I got a bad mark. I didn't get enough mark in maths. I am bad at maths." उसने क्या बोला
he is bad, I'm bad at studying, I can't do studying. That Hmm. is the time the power of yet comes, where you as a parent or a facilitator or a teacher hold the space for the child and understand, or rather explain to the child that today you have not been able to do good at math. What is stopping you from doing it tomorrow? You have not got the desired grades yet. You can get it later. But then what you will need to do for that is the education you need to give. बट ये ऑटोमेटिकली होगा अगर आप एफर्ट को प्रेस कर रहे हो और इंटेलिजेंस को प्रेस नहीं कर रहे हो शुरुआत से. नाउ दिस इज ऑल्सो लाइक अ मसल. आई स्पोक अबाउट न्यूरोप्लास्टिसिटी. ये एक रात में नहीं होगा. If you have been having conversations with your child which are fixed mindset oriented, it is going to take some time for that shift to happen. Now आपने इनिशियली एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या हमारे पास फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट पहले से होता है. अभी जैसे जैसे हम अडल्ट बनते हैं ना, हमारा डिफॉल्ट फिक्स माइंडसेट होता है. Hmm. हम पैदा ग्रोथ माइंडसेट से होते हैं, बट एज वी ग्रो एंड वी गो थ्रू ऑल दीज एक्सपीरियंसेस आवर डिफॉल्ट बिकम्स फिक्स माइंडसेट. बट द ब्यूटी इज हियर यू चूज टू शिफ्ट फ्रॉम ग्रोथ माइंडसेट टू फ्रॉम फिक्स्ड माइंडसेट टू ग्रोथ माइंडसेट. जैसे कि आज से इफ यू एंड मी आर रिकॉर्डिंग द पॉडकास्ट एंड समथिंग डजंट वर्क वेल, द फर्स्ट थिंग दैट विल कम टू माई माइंड इज, ओ माई गॉड, ये मैंने बराबर नहीं किया, अरे यार, आई स्टार्ट रुमिनेटिंग एंड आई स्टार्ट मे बी ब्लेमिंग माई सेल्फ ऑल्सो. नाउ हियर थ्रू माई सेल्फ अवेयरनेस एंड थ्रू माई प्रैक्टिस ऑफ ग्रोथ माइंडसेट, थोड़े टाइम के बाद एक शिफ्ट आएगा वेर आई आस्क माई सेल्फ, शुड आई बी थिंकिंग लाइक दिस और लाइक दैट. So Hmm. you can begin with fixed mindset, but you can shift to growth mindset even in the time of challenges, when it is very overwhelming that time. Okay, so you spoke about neuroplasticity, you spoke about praising the effort, and you also talked about the power of yet, which reminded me कि जो मेरी बेटी है, she watches a TV show called Gabby's Dollhouse. Hmm. उसमें गैबी जब भी कुछ नहीं कर पाती है तो she says, I don't know the answer yet. तो Ah, अभी I could make the connection कि हाँ वो yes. growth mindset वाला है. हाँ. तो पूजा, आर देयर एनी अदर वेज कि हम अपने बच्चों की हेल्प कर सकें? एंड ऑब्वियसली पेरेंट्स में भी सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए, तो पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्लीज हमें बताइए कि हम कैसे अपने बच्चों की हेल्प कर सकते हैं अपने लिमिटिंग बिलीव्स को बीच में लाए बिना. Uh, like you said, parent self-awareness is very important. हम्म. You have to unparent yourself from the parenting that you have got. That is the first step. There is absolutely no shortcut to it. A lot of parents come and ask me question कि मेरा बच्चा ऐसा कर रहा है, मैं अभी क्या करूँ. इमीडिएट, इसमें कोई इमीडिएट सॉल्यूशन नहीं है. अगर आपने एक बिहेवियर 12 13 14 15 साल तक किया है बच्चे के साथ और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एक टेक्निक से सब कुछ चेंज हो जाएगा, नहीं होगा. नहीं होगा. That I want to actually highlight this. You cannot reparent, or you cannot take one or two concepts home and then everything changes. No, you will have to try multiple things with your children. You have to first repair. You have to repair the things that have not gone well. You have to become aware कि आपके beliefs क्या है, आपके patterns क्या है, आपको कैसा parenting किया गया है, आप किस बिलीफ सिस्टम के साथ पेरेंटिंग कर रहे हो, आपको वो पहले अंडरस्टैंड करना है. एंड देन यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज वर्किंग एंड व्हाट इज नॉट वर्किंग. बट इसका एक शॉर्टकट अगर दो, दिस इज समथिंग विच आई बिलीव इन. जब भी आप आपके बच्चे के साथ बैठे हो, इसको सुधारना है या इसको और बेहतर बनाना है, ये सोच के साथ ना बैठ के आप इस सोच के साथ बैठो, इसके साथ कनेक्ट कैसे करूं, इसके साथ कोलैबोरेट कैसे करूं. ये जो मेरा बच्चा है ना परफेक्ट है, बट इसको मैं और तराशू कैसे. मेरा बच्चा ब्रोकन, माई चाइल्ड इज नॉट ब्रोकन दैट आई हैव टू फिक्स माई चाइल्ड. Sad enough, Maitri, even I do that. I'm not a great parent, honestly speaking. I am also learning and I use a lot of repairs in my work with my child. But we have kind of built an habit when we sit with our child, we ask, how am I going to connect with my child? My child is perfect as she is. But and not broken. I don't need to fix anything with her. But collaboratively, we have to build some habits, we have to build some behaviors. And can I do that? Okay, now I have one very one story actually from Huh. me and mine and my daughter's life. So अभी Okay. क्या हुआ कि she has her summer holidays. First grade उसका हो गया है. तो फर्स्ट ग्रेड में she was taught tables till 5. तो Hmm. उसने वो लर्न कर ली थी.
और जल्दी से हो गई थी। अब क्या हुआ, जब उसकी समर हॉलीडे स्टार्ट हुए तो मैंने उसको बस एक टास्क दिया, मैंने बोला कि 10 तक टेबल्स फिनिश कर लो इस हॉलीडे में, तो हम्म तुम्हें सेकंड स्टैंडर्ड थोड़ा सा हम्म इजी लगेगा, क्योंकि तुम्हारे पास अभी टाइम है, एक दिन में हम्म एक टेबल। और आई मीन आई गेव हर आई थिंक अ वीक फॉर ईच टेबल इनिशियली, कि 6 की हम्म टेबल के लिए एक वीक ले लो, फिर 7 के लिए, ऐसे करके दिया। हम्म एंड शी वॉज नॉट वेरी इंटरेस्टेड। एक तो हॉलीडेज चल रहा है, उसको पूरे दिन खेलना है। हम्म तो उसने 1.5 महीना निकाल दिया, अभी भी उसको 6 और 7 की टेबल्स याद हुई हैं, वो भी वो बीच बीच में भूल जाती है, 8 9 की तो हम्म अभी तक याद नहीं हुई है। हम्म तो आई कीप ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स, कि ऐसे कर लो वैसे कर लो। आई कीप लुकिंग फॉर वेज ऑल्सो, कि चलो फन कैसे बना सकते हैं, कुछ कैसे हम्म डाल सकते हैं, सब किया। हम्म बट उसने बताया मुझसे क्या बोल दिया, शी इज करेंटली वॉचिंग अ सीरीज, तो हम्म उसमें उसने सुन लिया कि अपने ऊपर बिलीफ नहीं है, अपने ऊपर यकीन नहीं है। तो नाउ शी केम टू मी, मम्मा मुझे अपने ऊपर यकीन नहीं हो रहा है कि मैं टेबल याद कर सकती हूँ। शी केम टू, फर्स्ट आई वाज शॉक्ड, वाओ यकीन बोलना कहाँ से सीखी। देन शी टोल्ड मी कि उसने वो हिंदी में करके देखा एंड नाउ शी यूजेस दैट वर्ड। तो मैंने उसको पहले तो हाँ उसका मतलब समझाया कि यकीन हाँ होता क्या है, बट शी नाउ कीप सेइंग मुझे यकीन नहीं है मैं ये कर पाऊंगी। तो हम्म यार, कितना मैं उस छोटी सी बच्ची को मोटिवेट करूँ, 7 साल की बच्ची को। आई वॉज ऑल्सो लाइक क्या है। तो मैंने उसको थोड़ा स्ट्रिक्टली उसका भी टीवी बंद हाँ करवा दिया, और मैंने उसको बोला हाँ है कि जब तक तुम्हें 9 तक टेबल्स याद नहीं हो जाएंगी, हाँ मैं तुम्हें टीवी नहीं देखने दूंगी। हाँ तो शी इज नॉट वॉचिंग एनी टीवी सिंस लास्ट हम्म 1 वीक, और उसने 6 7 की टेबल्स याद कर ली हैं। और वंडरफुल 8 हाँ 9 की बची है, बट आई डोंट नो इफ इट इज इवन द राइट अप्रोच, बट दैट्स व्हाट आई हैव बीन डूइंग। यस सी आई टेल यू व्हाट मैत्री कहीं कहीं है ना ये सारे टूल्स अच्छे हैं these all concepts are really good but yeah we are parents we are busy with our work sometimes we have to take a middle path कहीं हम थोड़ा स्ट्रिक्ट हो भी जाते हैं कहीं बाउंड्रीज भी सेट करते हैं दैट इज ऑल राइट बट जब उसने बोला मेरा यकीन उठ गया है कि आई my belief is not that I can learn you could have used the power of yet you don't have belief yet we will start building it. Uh-huh. So it's that simple. Even if you can apply to your and my life, अगर 6 महीने पहले कोई मुझे बोलता कि पूजा let's record a podcast, I would say no. I don't want to record a podcast. I'm happy doing my offline work. Mhm. But then that time I said, I don't have the confidence yet. What is stopping me from building it later? Similarly, with your child, she already knows the power of yet. She is looking at that series. Just tell her, yes, I agree with you. Sometimes it's agreeing with your child is best, acknowledge what they Mhm. believe. जब बच्चा बोल रहा है मेरे में बिलीफ नहीं है say okay I believe you is a very powerful sentence to make your child do anything. Your child can come and say I don't like learning tables. Say I Hmm. believe you, but what should we do about it? This is necessary for your school. Do you want to let it go? Your child will only think and come back and say, no, letting go wouldn't be nice. So what should we do? See, Maitri, open-ended questions में ना बहुत power होता है. Mhm. Put it on your child. The idea is to create a space where you allow your child to think for themselves. And there is a whole language of growth mindset which we need to learn. Uh, Carol Dweck has done a great mindset. There is one podcast and one person I follow, Alexandra, Big Life Journal. She has Mhm. done a phenomenal work in how you can develop growth mindset. That is my go-to guide. She has broken it down like a master's course. Mhm. How Okay. what you should do when your child is getting angry, what you should do when your child is not feeling confident. There are so many ways, but essentially you have to develop the language of growth mindset. Open-ended question, putting more trust in your child, believing their emotions and their thoughts, and not correcting and advising them in the first go. Put those questions on them. Mhm. Okay, wow. I got a lot of ideas now कि how will I talk to Hidaya, and Right. how will Yeah. I, maybe motivate her to learn Yes. कि Yes. हाँ ये ऐसे ऐसे कर सकते हैं। Maitri, I'll add one thing. I should have added it. Interest follows focus. Okay, that's a foundational of learning. Hmm. अभी क्या हो रहा है? A lot of uninteresting things are taught to children very early in life. Mhm. Learning per se is become stressful, and that Mhm. is why I'm a big supporter of Montessori courses, free learning systems, open schools.
My daughter goes to Mhm. one such schools where they are not pressurized into learning anything. They learn everything through play and everything through analysis and through a way of critical thinking. वो if you Mhm. introduce that early in life, you will see your children look at learning as joy, learning as rewarding rather than learning as punishment. But in a lot of regular academic system, learning has become like a punishment. और क्या होता है हम भी कैसे धमकियां देते हैं जैसे I'm sorry but you took away her Yeah, TV time. yeah. You took away her entertainment. अगर एंटरटेनमेंट और इंटरेस्ट इतनी बड़ी चीज नहीं होती ना बॉलीवुड इतना सक्सेसफुल इंडस्ट्री नहीं होता. Yeah, that is true. That is true. So Abhi, yeah. learning being interesting and entertaining is very important. हाँ, लर्निंग को इंटरेस्टिंग करने का आई आई रियली फील द नीड बिकॉज अभी हाँ. वो पूरे दिन घर पे रहती है शी प्लेज शी डज प्रेटेंड प्ले ऑल डे एंड आई लुक एट हर कि वो क्या क्या सीख रही है उसको क्या क्या Yeah. आता है राइट नाउ आई नो शी इज इन द किचन मेकिंग हर पोस्ट रिकॉर्डिंग स्नैक फॉर मी आफ्टर Wow. एवरी पॉडकास्ट रिकॉर्डिंग शी मेक्स अ वेरी वियर्ड स्नैक फॉर मी बट शी डज तो Wonderful. अभी उसने वो खुद सीखा है क्या क्या डाल डाल के बनाना ड्राइंग करना क्राफ्ट करना हाँ. इन सब में उसका इंटरेस्ट है मॉडलिंग करती हाँ. रहेगी पूरे दिन बट हाँ. मैंने ये देखा है कि जैसी पढ़ाई की बात आती है ना हाँ. बच्चों को लगता है कि ये जैसे आपने भी बोला पनिशमेंट है और मेरी बच्ची को लगता है टाइम की बर्बादी है कि उसको जल्दी से पढ़ लो और खत्म करो एंड आई हाँ. सॉ उसकी जो सेकंड ग्रेड की बुक्स हैं दे आर ऑलरेडी टीचिंग फ्रैक्शंस फ्रैक्शंस हाँ. आर देयर और वॉल्यूम मास पता नहीं क्या क्या पढ़ा क्या रहे हैं क्या. अब कि मैंने फिफ्थ सिक्स में पढ़ा था शायद ये उनको हाँ. अभी से पढ़ा रहे हैं डेसिमल भी थोड़ा हाँ. थोड़ा आने लगेगा कि रुपी और पैसे कैसे करते हैं बस शॉक टू सी और हम्म. अगर आपको पढ़ाना है तो मे बी अप्रोच शुड बी डिफरेंट वो अप्रोच नहीं है शी इज सही इन अ बात है. सीबीएसई बोर्ड स्कूल और अप्रोच मुझे तो ऐसा कोई खास नहीं लगा तो हम्म. आई थिंक स्कूल के लेवल पे हम बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं अगर हमारे हम्म. पास जो बेस्ट स्कूल अवेलेबल है हाँ. जो हम कर सकते हैं वही करवा रहे सही हैं बात है. तो आई सही थिंक बात है. घर पे हम ज्यादा मे बी कुछ एफर्ट डालें या कुछ ऐसा करें जैसे आपने भी एक हम्म. आइडिया दिया तो आर हम्म. देयर मोर प्रैक्टिकल वेज टू एंगेज किड्स क्योंकि पढ़ाई ओके. में बच्चों को ओके. इंटरेस्ट होता है बट उसी हाँ. सब्जेक्ट में होता है जो उनको अच्छा लगता है या जो उनको हम्म. इजी लगता है जैसे हम्म. उसको इंग्लिश हम्म. ईवीएस सब अच्छा लगता हम्म. है हम्म. और मैथ्स में शी इज वेरी गुड हम्म. बट उसके बाद भी जब उसको मैथ्स आता है ना पढ़ने के लिए हम्म. तो पहले तो उसको एक रेजिस्टेंस आ जाता है हाँ. तो वो रेजिस्टेंस जिन जो चीज बच्चे के लिए जरूरी है उस वो हम कैसे हटाएं इसकी जड़ देखते हैं. आई हम्म गिव यू प्रैक्टिकल टिप्स बट प्रैक्टिकल टिप्स का कोई मतलब नहीं अगर हम ये कॉन्सेप्ट को नहीं समझते. देयर इज हम्म अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड मल्टीपल इंटेलिजेंस. ओके दिस वाज प्रमोटेड बाय हॉवर्ड गार्डनर एंड he said that, and you know what, the beautiful part is our Indian education, Vedic education system before the Macaulay method came in via Britishers, we also believed in that every child has different kind of intelligences, and that is why art, craft, creative, the right side careers were also equally important at that time. हम्म Abhi, there are 9 types of intelligences, plus minus one. Some are recognized, some are not. अगर हम मेजर इंटेलिजेंस को देखें तो देर इज मैथमेटिकल एंड लिंग्विस्टिक. अभी हम्म स्कूल में ये दो इंटेलिजेंस प्रमोट किए जाते हैं और इन्हीं दो मीडियम से सिखाया जाता है. या बट उसके बाद आते हैं काफी सारे दूसरे इंटेलिजेंसेस विच इज विजुअल स्पेशल आर्टिस्ट लोग जिनको स्पेस समझता है, कलर्स समझते हैं, जिनको एक्सप्रेशन समझता है. उसके बाद आता है ऑडिटरी, सिंगर्स, पब्लिक स्पीकर्स, पॉडकास्टर्स. उसके बाद आता है काइनेस्थेटिक, डांसर्स, स्पोर्ट्समैन, एथलीट्स. हम्म ये सारे इंटेलिजेंस को रिकग्निशन ही नहीं है. हम्म इमेजिन एक काइनेस्थेटिक बच्चे को आप क्लास में बिठा रहे हो, उसका लिंग्विस्टिक और मैथमेटिकल इंटेलिजेंस कम है. आई एम नॉट सेइंग दैट चाइल्ड कैन नॉट डेवलप. स्किल या डेवलपमेंट से आप कौन सा भी इंटेलिजेंस बढ़ा सकते हो, बट आपका एक सेट पैरामीटर है. जैसे आपने बोला ना इनिशियली जो होता है वो होता है. We are all born with a bias towards a certain intelligence, and the school system is not looking into that bias. There are some schools which are now teaching in 3 ways: auditory, visual and kinesthetic. तीनों मीडियम से सिखाते हैं, which is also done in Montessori schools. तो जो बच्चा विजुअल है वो विजुअल देख के सीखता है, जो बच्चा ऑडिटरी है वो सुन के सुनता है, और जो बच्चा काइनेस्थेटिक है he will learn through play. Probably your child could be more right brain, could be more artistic, visual and kinesthetic rather than
mathematical. Maybe languages is somewhere in between. There are other two intelligences, which is intrapersonal and interpersonal intelligences. Interpersonal is your how you communicate well. You know, politicians, actors, again, podcasters have great interpersonal relationships, intelligence. And there are intrapersonal people, the people who usually will go into yoga and meditation and spirituality, who understand themselves, the thinkers, the philosophers, the scientists also are intrapersonal people. But ये सारा एजुकेशन में इसको इम्बाइब ही नहीं किया गया है. तो ऐसा हुआ कि मछली को उड़ने को बोल रहे हो, बंदर को डीप डाइव करने को बोल रहे हो, और हाथी को बोल रहे हो चींटी के घर में जाके रह जा. इसका प्रैक्टिकल टिप दूं कैसे मैं? बट टू आंसर योर क्वेश्चन आई विल अगेन कम बैक टू द सेम थिंग. जब भी बच्चे के साथ बैठ रहे हो कुछ करने के लिए, गिव मोर कंट्रोल टू द चाइल्ड देन यू. जैसे कि एक सर्टन प्रॉब्लम है, सो गिव मोर कंट्रोल टू योर चाइल्ड. जैसे कि एक प्रॉब्लम है, आप बैठो बच्चे के साथ, बोलो कि ये प्रॉब्लम आई एम सीइंग, एंड देन यूज अ आई स्टेटमेंट. Say with Addu, if I take that, can I take that example? Yes, sir. Yeah. So when she's not doing the tables, instead of saying you are not doing the table, you are watching the TV, you are wasting your time, etc., etc. I don't know you speak like that. I'm just taking an average statement what a usual mother will speak. And then rather than saying that, say, Addu, I see that you are not showing interest in doing the tables. I feel afraid that you may not be able to catch up with the class in second standard. I wish you would know more table. This may be partially appropriate sentence, but use more I statement rather than you statement. क्या होता है? You statement में आप बच्चे को criticize कर रहे हो, blame कर रहे हो, corner कर रहे हो, personal attack कर रहे हो. But I statement में आप बच्चे को आपका information दे रहे हो कि मुझे ऐसे ऐसे लग रहा है. Now tell me what we should do. कैन यू हेल्प मी विद दिस? कंट्रोल किसके हाथ में गया? बच्चे के हाथ में गया. एंड यू नो वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड हियर कि जब वो ऐसा करती है ना कि उसको नहीं पढ़ना है, तो मैं कहती हूँ कि दिस विल हेल्प यू इन लाइफ, इन योर स्कूल. मेरा इससे इतना बेनिफिट कोई हो नहीं रहा है, तुम्हारा ही बेनिफिट होगा. मैं तुम्हारे ही बेनिफिट की बात कर रही हूँ. और आई ट्राई टू पुट इट पोलाइटली, बट फिर मुझे अपने मम्मी पापा की याद आ जाती है कि तुम्हारे भले की बात कर रहे हैं. मतलब वो लोग गुस्से में बोलते थे, मैं आई ट्राई टू पुट माई स्पिन ऑन इट कि जिससे उसको लगे कि हाँ अच्छा ये तो मेरा ही लॉस हो रहा है, मुझे पढ़ लेना चाहिए. बट आय थिंक इट्स नॉट ॲज इफेक्टिव्ह. आता मी तुमच्याशी या लँग्वेज मध्ये बोलते. तुम्हाला ही लँग्वेज कळती आहे का? ओ माय गॉड, वॉज दिस मराठी? Exactly. You know what I did? I spoke to you in a language that you don't understand. And when we tell children ये तुम्हारे भले के लिए ही है, बच्चे को पता नहीं है वो भला क्या है. You're talking about information that your child doesn't know. You know, this revelation came to me when my daughter was 4.5 years. और तभी मैंने काउंसलिंग स्टडी साइकोलॉजी स्टार्ट किया था. I had shifted my career from being an interior designer to counselor. And मैं आके बोलती थी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये वाज टू टॉक बिग वर्ड्स, यू नो, मोटिवेट करूंगी. अरे मैंने सीखा है, अभी बच्चे को भी सिखाओ. हमारा बच्चा हमारे लिए प्रोजेक्ट होता है ना हर बार. हाँ, yes. Then one day after everything she came and said, Mama, please don't get angry or sad, but I don't understand half the words that you say. How will I do it? Uh-huh. You understand? And that time I sat back and I thought, हम बच्चे को हमारे 30 इयर्स के एक्सपीरियंस के साथ बोले जा रहे हैं भला भला. वो बच्चे को अभी लग रहा है कि अगले 10 मिनट में मेरा भला वो मेरे फ्रेंड के साथ खेलने में. True, exactly. So we are kind of, again, we need to adopt a language that your child will understand. ये नया लैंग्वेज सीखना पड़ेगा. हम बार बार बच्चे को बोलते हैं, हम छोटे थे तब ऐसे करते थे, हमारे मम्मी पापा तो इतने स्ट्रिक्ट थे, फिर भी हम सुनते थे. वो बच्चा बोलता है मुझे क्या लेना देना इस चीज से, आई डोंट केयर. और इफ यू एंड मी आर ऑनेस्ट मैत्री, व्हेन वी वर चिल्ड्रन और व्हेन वी वर टीनेजर, एटलीस्ट मेरे केस में तो है, अगर मेरी मॉम ने इधर लाइन ड्रॉ की है ना, मैं हमेशा दो लाइन आगे ही गई हूँ. हाँ, हम लोग रिबेल तो करते ही थे. या अगर मम्मी ने इतना करने को बोला है ना, मैंने इतना ही किया है.
सिंपल सी बात है, अगर शादी के पहले जब आप 17-18 साल के हो, तब आप एक टाइम का भी खाना बना लेते थे तो पूरा दिन, लाइक एटलीस्ट आई यूज्ड टू डू, एक टाइम खाना बना तो पूरे दिन गाती थी, वाओ आई कुक्ड वन मील, बिकॉज दैट वाज हस्बैंड सो भी मच नहीं एफर्ट फॉर मी। करते। आज दिन के 5 मील्स बना लो फिर भी इजी होता है। हाँ। अगेन न्यूरोप्लास्टिसिटी ना, जो चीजें बार 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 इतने साल तक की अभी मुझे इजी लगने लगी है, तो हम्म। आपको पढ़ाई इजी लग रही है, आपको सब कुछ हम्म। इजी लग रहा है क्योंकि आप 30 इयर्स के एक्सपीरियंस से बात कर रहे हो। वो हम्म। बच्चे का 3 साल 5 साल 7 साल का एक्सपीरियंस है, उसके लिए तो डिफिकल्टी है। या Okay, it was really interesting Yeah. this bit of conversation, especially Yeah. learning about multiple intelligence. मैंने वेग हाँ. सा आइडिया था मुझे, लेकिन मैंने कभी भी हम्म, इसमें डीप डाइव नहीं किया था, तो थैंक यू हम्म, फॉर टेलिंग yeah. ऑल ऑफ दिस टू अस इन अ वेरी इजीली अंडरस्टैंडेबल वे. और now Pooja, before we finish this episode, हम्म, are there any tips or things that all the parents should keep हम्म, in mind while raising their kids? yes. सबसे पहला टिप ये है कि अपना एजेंडा साइड में रखो, कि मैं मेरे बच्चे को ऐसे बनाऊंगा, मैं मेरे बच्चे को वैसे बनाऊंगा। सी आई ऑल्सो, आई एम अ साइको सोशियो स्पिरिचुअल काउंसलर, सो स्पिरिचुअलिटी विल वाटर डाउन इन माई वर्क a lot of time along with psychology and sociology. आप हर सोल अपनी जर्नी लेके आता है। योर चाइल्ड हैज कम विथ अ सेट ब्लूप्रिंट, एंड इफ यू लीव योर चाइल्ड like that for few years till the child is 6 or 7 years old without doing too much conditioning and offering unconditional positive regard, your Mhm. child will find his or her way to excel in life. बट ऐसा आइडियल एनवायरनमेंट या सिनेरियो नहीं है, बट मोटा मोटी हम अपना एजेंडा साइड में रख के हमारे बच्चा क्या है, व्हाट ही इज गुड एट और व्हाट शी इज गुड एट, वो किस में इंटरेस्ट दिखा रहा है, अगर वो उस चीज पे ध्यान दे तो बेहतर होगा। यहाँ पे एक बड़ी मिस्टेक क्या हो रही है, बिकॉज वी आर ऑल गोल ड्रिवन, और हम जब भी बच्चे की बात करते हैं एक अंडरलाइनिंग एकेडमिक्स ही आता है, एक्सेलेंस ही आता है, हम दूसरी चीजों के बारे में नहीं बात करते। तो Mhm. ये एक समझना जरूरी है कि है ना, एक ग्रोथ लर्निंग पैटर्न होता है, बाय एज के हिसाब से एक लर्निंग पैटर्न होता है। और हमारा भगवत गीता, हमारे स्क्रिप्चर्स, वैदिक सिस्टम और इवन रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च सेज दैट फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ till 7 to 8 years, the child is supposed to be given unconditional love and is supposed to explore variety of things without वरिंग अबाउट परफेक्शन और परफॉर्मेंस। मतलब कुछ भी कर रहे हो मजा आ रहा है इसलिए कर रहे हैं, सिंगिंग कर रहे हैं मजा आ रहा है इसलिए, डांसिंग कर रहे हैं मजा आ रहा है इसलिए, लिख रहे हैं मजा आ रहा है इसलिए। देर इज नो गोल टू इट टू बी परफेक्ट और टू परफॉर्म। बट अपन 2 साल से ही बच्चों को परफेक्शन और परफॉर्मेंस में डाल देते हैं। Mhm. पहला फिक्स्ड माइंडसेट यहाँ आ गया, उनको ग्रोथ से बाहर लेके जाते हैं। ग्रोथ माइंडसेट क्या है, कुछ भी करने में मजा आ रहा है और मजा आ रहा है इसलिए ज्यादा कर रहे हैं। फिर आता है एक टाइम, एक एज ऑफ 8 to लेके 12 तक, यहाँ आप कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना चालू करते हो, थोड़ा डिसिप्लिनिंग करते हो, ऐसा मत करो, बाउंड्री सेट करते हो, अभी ऐसा नहीं चलेगा। यू कैन इवन स्टार्ट एट 5 or 6 ऑल्सो, क्योंकि अभी वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड वेर यू नीड टू टीच चिल्ड्रन समथिंग। Mhm. और 12 के बाद आता है रेजिमेंट, जहां पे जो करना है वो करना है, Mhm. बट ये नहीं हो रहा है, और यहाँ हम सबसे पहले गलत हो रहे हैं। दूसरा है, जैसे मैंने पहले बोला, ऑलवेज बिलीव इन योर चाइल्ड, दैट Mhm. इज अ ट्रेडमार्क ऑफ बिल्डिंग कनेक्शन विथ योर चाइल्ड। बिना कनेक्शन के आप आपके बच्चे से कुछ भी नहीं करवा पाओगे। कुछ सालों तक वो आपके डर की वजह से कर लेगा, कुछ सालों के लिए वो कंडीशनिंग की वजह से कर लेगा। मेरे पास इतने सारे टीनेजर्स आते हैं काउंसलिंग में जो बोलते हैं, मैं सिर्फ 16-17, मेरा 12th स्टैंडर्ड होने का वेट कर रही हूँ क्योंकि मैं ग्रेजुएशन के लिए तो बाहर जाने वाली, देन इट इज ऑल ओवर। इधर तक ही मुझे सुनना है इन लोगों का, देन इट इज ऑल हाँ. ओवर। हाँ. हाँ. थर्ड is you do what your child wants to, you do what you want your child to do. Your child is not going to listen to you, your child is going to observe you and follow your footsteps. You would have noticed by now your daughter is 7, कुछ टर्म्स जो आप यूज करते हो हूबहू यूज करती होगी, आप जैसे लोगों से बात करते हो वो हूबहू वैसे ही बात करती होगी। Hmm. योर चाइल्ड कॉपीज यू,
So whatever you want to instill in your child, you are sitting on the phone and eating your meal. You are watching screen and doing your work or whatever. You are doing all of those things, and then you tell your child you don't do it. Your children will know this is hypocrisy. They Yeah. will not follow you. Mm. And fourth is always, always collaborate, connect with them. इसके अलावा मेरे पास और कोई practical tip नहीं है. If you do this, then Yeah. all the other 100 tips will work for you. And Collaboration. yeah, one thing I will bring when I'm saying understand your child, I'm asking you to bring empathy for your child also. आपके लिए बच्चे के लिए प्यार बहुत है, आपको बच्चे के लिए बहुत कुछ अच्छा करना है. You want the best that you can do for your child. पर थोड़ा बच्चे के शूज में भी उतर के देखो ना कि वो बच्चा किस पर्सपेक्टिव से बात कर रहा है. आई अग्री कि बच्चे को पूरा लाइफ का अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, Hmm. बट आपका बच्चा आपको तभी सुनेगा जब पहले आप उसको बोलोगे, ओके, आई बिलीव यू, आई एम लिसनिंग टू यू एंड आई अंडरस्टैंड व्हाट यू से. नाउ you listen to me and understand what I have to say. Mhm. Then your child will definitely listen to you. Definitely. ओके ओके सो आई थिंक जो भी आपने बताया है ये छोटे से लेके हम लोग बड़े बच्चों तक यूज़ कर सकते हैं और अपने ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं इसमें से कई Yes, चीज़ें yes, yes, yes. राइट और पूजा वी हैव टॉक्ड अबाउट किड्स नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट यू अ लिटिल तो Okay. हमें ये बताइए कि व्हाट्स वन ऑफ द सैसिएस्ट थिंग्स दैट यू हैव डन एंड इफ इट इज रिलेटेड टू ग्रोथ माइंडसेट इट विल बी बेटर Oh, in fact, it is that the most sassiest thing that I've ever done is to adapt growth mindset. Because trust me, if I look back at my journey, I was a very fixed mindset person. And when I understood learning is a superpower, I can absolutely learn anything if I have intention, attention, and focus. That was life changing for me. आई नो आई थिंक डिफिकल्ट होता है हमारे मन में ही रेजिस्टेंस होता है जबकि हाँ. मैं हमेशा ये कहती हूँ मुझसे किसी ने बोला था एक बार कि यू विल कीप shattering your old beliefs and I believe in it now. I Yes, also yes. talk about it on my podcast, talk about it on Hmm. my Instagram, tell this to people I Yes, meet also कि कोई yes. जरूरी नहीं कि आप चिपके रहो एक बार जो चीज आपने हाँ, उसमें सुन ली. हाँ, हाँ, हो हाँ. सकता है कि आपकी जो थिंकिंग पहले रही हो वो गलत रही हो या फिर मे बी अभी जो आपका लाइफ का जो एज है उस पर वो सूट नहीं कर रही जो स्टेज है आपकी लाइफ Yes, की तो yes, लीव इट बिहाइंड लर्न समथिंग yes, न्यू. आई थिंक yes. ये ग्रोथ माइंडसेट ही है. दैट इज ग्रोथ माइंडसेट. यहाँ पे एक छोटी सी चीज ये आती है कि जब भी चेंज हो रहा है ना, व्हेन यू डिसाइड कि अभी दिस इज नॉट वर्किंग फ्रॉम मी, थ्रू योर सेल्फ अवेयरनेस, एक टाइम आएगा जहाँ पे रेजिस्टेंस होगा, हम्म. फ्रस्ट्रेशन होगा, इरिटेशन भी होगी. और जब आप इसको पार करते हो, जीत वहां होती है, चेंज वहां होता है. एंड यू नो व्हाट, दिस इज आल्सो कॉल्ड द लर्निंग कर्व. हाँ. Learning curve is where at the peak, when you reach that line where you're going to transform, you're going to feel a lot of frustration and irritation. That is also the electric charge that your neurons are producing in your brain because now they are shifting and changing. And when you push through that resistance, you you achieve the transformation or the change or the growth mindset that you're talking about. ओके ओके बहुत ही मजा आया पूजा मुझे आपसे बात Yeah. करके बहुत सारी नई नई चीजें सीखने को मिली. एंड Hmm. नाउ इफ माय लिसनर्स वांट टू कनेक्ट विद यू दे वांट टू फाइंड आउट मोर अबाउट योर वर्क वेयर दे Okay. कैन रीच आउट एंड आल्सो टेल अस अ लिटिल अबाउट व्हाट ऑल यू डू. Okay. So my listeners can reach out to me on Instagram at poojaoswal.com, at Pooja Oswal. I'm also, they can also connect with me on LinkedIn, again under the name of Pooja Oswal. Um, about my work, like I mentioned earlier, I'm a socio-psycho spiritual counselor. That means uh, I have made it my life's mission to bridge the gap between Western psychology and Eastern philosophies. And my work revolves around growth mindset, mindfulness, non-violent communication, and self-awareness. What I do is I do a lot of workshops for corporates and schools on mindfulness and growth mindset. We also have a 3-month program where we teach children growth mindset, where along with 21st century life skills and digital management. Another thing that I do is I'm a rebirthing breathwork therapist and a past life regression therapist. And I do all of this in a one-on-one setting.
you can DM me on my Instagram to know more how the sessions can be planned, and we can take it ahead from there. That's wonderful. So, Yeah. Pooja, thank you so much for being on Little Fixes, sharing your insights, and giving us your time. Thank you so much, Maitri. I had a lot of fun talking to you. It was great spending this hour with you. It was very enriching and nourishing. Thank you so much. अगर आपको ये एपिसोड वैल्यूबल लगा तो प्लीज हेल्प लिटिल फिक्सेस रीच मोर पीपल बाय शेयरिंग इट विद समवन यू केयर अबाउट. यू कैन ऑल्सो गिव अस अ शाउट आउट ऑन इंस्टाग्राम. मेरा हैंडल है @littlepixespodcast. दिस हेल्प्स मी इन ग्रोइंग द पॉडकास्ट और बहुत सारे और लोगों की हेल्प भी होती है इसको सुन के. आई एम ग्रेटफुल फॉर योर टाइम. अब मिलते हैं नेक्स्ट वेडनेसडे को. तब तक के लिए खुद से प्यार करते रहो और सदा सैसी रहो. बाय.